There is one question asked in IIT based on meta center and metacentric height. एक्चुअली दोस्तों ये चीज मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट आईआईटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो सवाल जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आज, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है इक्विलिब्रियम का, वो दोस्तों आपको परफेक्ट समझ में आएगा अगर मैं आपको मेटा सेंटर समझाता हूं. So let us understand the concept of meta center. What happens, if the object which is floating on the water, just imagine there is one object, friends, let's say wooden stick is there. Theoretically, friends, this wooden stick must float over the water because the weight and the buoyant force both are acting vertically along the same vertical line, buoyant force being exactly equal to the weight of the stick. But you know what? This particular equilibrium is not stable. जैसे ही हम लोग वुडन स्टिक पानी में डालते हैं, अगर हम लोग वर्टिकल डालेंगे इसको दोस्तों, मतलब अगर ये पोर्ट्रेट में डालेंगे तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा. अगर वो दोस्तों तुरंत टॉपल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, लैंडस्केप पोजीशन में, एंड देन इट विल रिमेन देयर बीइंग floating over the surface of the water. So the stability of a particular floating object over the water is not only determined by its density, relative density. मान लीजिए ये सिग्मा है रिलेटिव डेंसिटी और ये रो है, तो अगर सिग्मा ज्यादा है रो से तो सॉरी सिग्मा अगर कम है दोस्तों रो से, तो फिर ये वुडन स्टिक जो है वो फ्लोट होनी चाहिए थियोरेटिकली, लेकिन नहीं होती दोस्तों. इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम. ये जो वर्टिकल स्टिक है, दिस इज इन थियोरेटिकली इट इज इन इक्विलिब्रियम, but it is not a stable equilibrium. So we are interested to know what is the meaning of stable equilibrium and what is the criteria of that stable equilibrium. So इसको देखते हैं दोस्तों. देखिए अगर एक वुडन राफ्ट है, इस वुडन राफ्ट को अगर हमने पानी में डाल दिया दोस्तों, जिसका डेंसिटी मानते हैं कुछ 500 kg पर मीटर क्यूब है, मानते हैं आधी है, पानी के डेंसिटी से दोस्तों आधी है. अगर आधी है तो what will happen? This wooden raft will float over the surface of the water with half being in the water and half being in the air. Now, the center of buoyancy is the point through which the buoyant force acts. It is called as, it is the point of application of buoyant force. It is nothing but, friends, the geometric center of the volume displaced. मतलब ये जो यहाँ पे मैंने ग्रीन दिखाया है, इस ग्रीन का जो सेंटर है, that is what is the center of buoyancy, COB. But COG is at the geometric center of the complete raft through which the weight of the raft acts. ठीक. सो देखिए दोस्तों, जब हम लोग कोई भी चीज को परटर्ब करते हैं, परटर्ब मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परटर्ब? परटर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब्ड, वेरी स्मॉल. हल्का सा मान लो इस वुडन ब्लॉक को मैं ऐसे इस साइड में फोर्स लगा के दोस्तों डिस्प्लेस करता हूं, ऐसे फोर्स लगा के मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए परटर्ब. If we perturb, then if there is a restoring torque or restoring force, then it is a stable equilibrium.
at perturbed configuration. देखिए यहाँ पे मैंने आपको perturbed configuration दिखाया. इस perturbed configuration में देखिए ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो थोड़ा सा इस साइड में झुक जाएगा ऐसे, इसलिए सेंटर ऑफ बायोंसी जो है वो थोड़ा सा इस साइड में झुक गया. देखिए, so what we do, we define the meta center first. The meta center, friends, is the intersection of the initial line of buoyancy. देखिए पहले जो लाइन थी buoyancy की वो क्या थी, इसको कहते हैं line of symmetry also. Okay, this is the line of buoyancy, initial line of buoyancy. Further, you know what, जब आप इसको हिलाओगे तो ये जो buoyant force है वो कैसे एक्ट करेगा यहाँ पर. This will act definitely vertical, friends. Definitely vertical. Buoyant force will act always vertical. So notice that the buoyant force and the weight both are creating the restoring torque. मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देखिए restoring torque मतलब वो फिर से इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. And the intersection of these two lines is called as meta center, MC, meta center. And this particular object rolls about this meta center. सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो फिर क्या है दोस्तों, जब तक ये मेटा सेंटर जो है ना वो जब तक दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, till the time the beta center is above the center of gravity, this will enjoy the stable equilibrium. मतलब ये जो जहाज होता है बड़े बड़े, यहाँ पे क्या इंश्योर किया जाता है, व्हाट दे इंश्योर दैट द मेटा सेंटर मस्ट बी above the center of gravity. आपको दोस्तों पता होगा कि एंकर नाम की एक चीज होती है. एंकर जहाज में बहुत हेवी होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे इसको कहते हैं एंकर, एंकरिंग द जहाज. ये जो एंकर होता है ना, दिस इज a very heavy block kept in the ship. Whenever there is a very big, चक्रवात तूफान अगर आता है, then this anchor is put down in the sea. Now what is being done there? हो क्या रहा है वहां पर? ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोस्तों, शिप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे किया जा रहा है. हाँ सर, इट इज बीइंग लोअर्ड. सो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग लोअर करेंगे तो क्या हो जाएगा, the ship will become stable, otherwise it will become unstable and it will topple in the sea. Anyway, I hope now you understood the stability. दोस्तों ये जो होता है, the height, the distance between the meta center and the center of gravity is referred as metacentric height. ठीक है, सो आपको क्या समझना है, मेटा सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर ऊपर है तो रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा और इसलिए वो शिप जो है वो स्टेबल हो जाएगी. सर तो फिर अनस्टेबल कब होगा सर ये? देखो, अगर एक मैं स्टिक लेता हूं, एक वुडन स्टिक ले लिया मैंने और इसको मैंने थोड़ा पर्टअप कर दिया. नाउ the chance for the center of buoyancy to shift is very small, and therefore the meta center, that is the intersection of new center of buoyancy line, new buoyancy line and the initial buoyancy line will lie below the center of gravity. इससे नीचे रहेगा ये. and due to that friends, देखिए हो क्या रहा है, ये जो वेट है ये वेट का है और ये buoyant force का है. Now this weight and the buoyant force are forming the couple which will disturb the stick further. तो जिस डायरेक्शन में आपने परटअप किया है उसी डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस दोस्तों क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे and this couple will try to topple the stick in the same direction of perturbation.
So notice that this offers us the unstable equilibrium. So देखिए मेटा सेंटर जो होता है वो अगर दोस्तों नीचे है, मेटा सेंटर बिलो सेंटर ऑफ मास, then there will be a toppling and it will not enjoy the stable equilibrium. So once you understand this particular thing, we can solve this question based on this concept, which has appeared in 1999 for 10 marks in IIT Joint Entrance Exam. Wooden stick of length L and radius R and density rho has a small metal piece of mass M of negligible volume. Very important. Very negligible volume. It is a particle attached to its one end. Find the minimum value for the mass M in terms of given parameters that would make the stick float vertically in equilibrium in a liquid of density sigma. दोस्तों बहुत ही अच्छा एक सवाल है, ये आप घर में दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. एक वुडन स्टिक लीजिए एंड एक बॉल बेयरिंग का बॉल होते हैं ना, ऐसे बॉल बेयरिंग की बॉल वो वुडन स्टिक को हम लोग अटैच कर सकते हैं. ऐसा कुछ अरेंजमेंट लीजिए एंड the sizes of these balls must vary continuously one by one. अगर हम लोग छोटा सा बॉल लगाएंगे तो ये वुडन स्टिक तो ऐसे टेढ़ी रह जाएगी. थोड़ा सा ज्यादा साइज का बॉल बेयरिंग का बॉल लेंगे तो ये स्टिक थोड़ी सी और वर्टिकल हो जाएगी. पर टिपिकल साइज ऑफ द बॉल मतलब हेवीनेस मास ऑफ द बॉल, ये जो स्टिक है वो स्ट्रेट वर्टिकल हो जाएगी. तो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, जैसे जैसे हम लोग इसको पार्टिकल जो है इस पार्टिकल का मास हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे होगा क्या, सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे 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 शिफ्ट होता रहेगा. इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे था, जब कोई भी यहाँ पे पार्टिकल नहीं था तो सेंटर ऑफ मास दोस्तों यहाँ पे था L/2 पे. एट L/2 इनिशियली द सेंटर ऑफ मास वाज. लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल नीचे हम लोग पार्टिकल का मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे दोस्तों सेंटर ऑफ मास नीचे 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 शिफ्ट होता जाएगा. जैसे मैंने आपको एंकर के बारे में बताया था, ये जो एंकर है जितना नीचे डालोगे एंकर को उतना सेंटर ऑफ मास नीचे नीचे शिफ्ट हो जाएगा और शिप जो है वो स्टेबल होती जाएगी. सो एट द थ्रेशोल्ड फ्रेंड्स, द पार्टिकल मिनिमम मास ऑफ द पार्टिकल के लिए दोस्तों हमें देखना है थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड पे क्या होगा, द सेंटर ऑफ buoyancy and the center of mass will coincide. ये कंसेप्ट लगानी है. क्या कंसेप्ट लगानी है, at the threshold of equilibrium center of mass coincides with the center of buoyancy. सेंटर ऑफ buoyancy कहां पे होगा, मान लीजिए x दोस्तों यहाँ पे सबमर्ज्ड है तो x/2 पे सेंटर ऑफ buoyancy होगा. क्यों x/2 पे सेंटर ऑफ buoyancy होगा, क्योंकि दोस्तों पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबली स्मॉल है एंड द स्टिक इज यूनिफॉर्म एंड देयरफॉर इट विल बी द सेंटर ऑफ buoyancy, जैसे मैंने आपको बताया था, इज द सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. ठीक, सो x/2. एनीवे, सो अगर हम लोग पार्टिकल को यहाँ पे रेफरेंस मानते हैं दोस्तों तो ये m into 0 m into L/2 m plus m. So this is what is the location of friends center of mass of the system from the particle, where capital M has been treated as mass of the rod, that is stick, and small m is the mass of the particle. So सेंटर ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू x/2, जैसे मैंने आपको बता दिया. एट थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ buoyancy, मतलब x/2 इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय 2 इनसाइड द ब्रैकेट m plus m. अब दूसरा लॉजिक क्या है, फ्लोटिंग के लिए दोस्तों लॉजिक यह है कि द वेट, कंप्लीट वेट इज इक्वल टू buoyant फोर्स, है ना, सारे ऊपर बराबर दोस्तों सारे नीचे.
देखिए ये स्टिक है दोस्तों और ये यहाँ पे पार्टिकल है, बॉन्ड फोर्स ऊपर लगेगा और स्टिक का और इसका मास जो है वो नीचे लगेगा बेटा. So this is equal to this. So for the equilibrium, friends, we are supposed to write the equation of equilibrium, and then this is what is your x, how much it should be submerged, that is what is x. So this x, if we substitute in 4, then we will get this particular thing. देखिए अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखिए ये तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा दोस्तों, ये x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा. And thereafter I am just substituting this m, कैपिटल m को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. What is this कैपिटल है दोस्तों? It is pi r square into rho l. देखिए कैपिटल M, pi r square rho l and sigma into pi r square. So this, अब दोस्तों इसका मैनिपुलेशन आप लोग देख लीजिए, ये स्क्वायर रूट है इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट कर लिया, एंड देन यू विल गेट द आंसर pi r square l inside the bracket square root of sigma rho minus rho. ये मैनिपुलेशन आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है. मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया. अगर आपको डाउट आते हैं मैनिपुलेशंस में तो आप इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया सर, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आपका अगर ज्ञान बढ़ रहा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए लोगों के साथ और बेल आइकॉन भी दबाइए. थैंक यू.